Yes, students, now we'll revise 1 markers of PT2 syllabus. The syllabus of PT2 exam is chapter number 1 to 8. Chapter number 1, 2, 3 were there in the PT1 exam. Nature and significance of management, then principles of management and business environment. ये 3 जो थे वहाँ पे थे. उसके बाद के नेक्स्ट जो 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. Up to this chapter the syllabus is there in PT2 exams. Fine. So we'll start with the 1 markers, revision of 1 markers. Who will give me the meaning of controlling? Meaning of controlling. Yes, Divyanshi. The controlling refers to the process of bringing actual results closer to desired results and measuring any deviation and taking corrective action against that occurred deviation. How we can bring the actual result closer to the planned result, preset results? We can do it by comparing both the performances. By comparing the actual performance with the standard output, standard performance, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था उसके साथ हम अपनी एक्चुअल आउटपुट को जब कंपेयर करेंगे, जब मैच करेंगे, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू फाइंड द डेविएशंस एंड देन अगेन इन टर्न we will be in a position to remove those deviations by taking necessary steps. Okay. Which one of these is not a feature of controlling? I am giving you 4 options. You have to tell which one is not a feature of controlling. One is continuous process, other is action oriented, third is keeping employees busy, and last is pervasive. Keeping employees. हाँ जी, हर्षा ने कौन सा बोला? Keeping employees busy. Sir, keeping employees busy. Keeping employees busy. Just keeping employees busy is not a feature of controlling. All others were features of controlling. Controlling is a continuous process. Controlling is a continuous process. Which aspect of controlling is highlighted here? Sundara. Sir, features of control. Features of control. Aspect है means topic कह सकते हैं. Which aspect है ना? अगर होता controlling helps in removing the deviations, suppose, then the aspect would have been importance of control. Importance. Questions commonly आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार आए हुए हैं, 2-3 साल पहले तो आ ही गए थे क्वेश्चन. और एक पॉइंट देते हैं, दे डोंट आस्क कि एक्सप्लेन दिस फीचर, वो पॉइंट दे देते हैं, पूछते हैं ये कहाँ से आया है पॉइंट. जैसे मैंने अभी बताया, कंट्रोलिंग जो है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. विच आस्पेक्ट इज देयर? आस्पेक्ट इज फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. अगर 1 मार्कर में आना हो तो ये, इसी को ही आगे चाहे टीचर 3 मार्क्स में डाल दे, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 6 में, पूरा स्कोप है. ये क्वेश्चन ऐसे हैं 1 से लेकर 6 मार्क्स तक रेंज करते हैं. 1 मार्क ये आ गया, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. विच आस्पेक्ट इज दिस? द आस्पेक्ट इज फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. 1 मार्कर हो गया. उसके बाद जब हमने मार्क्स ऐड करने हैं, हमने कहना है एक्सप्लेन एनी 3 मोर पॉइंट्स ऑफ सेम आस्पेक्ट, एनी 4 सेम आस्पेक्ट, एनी 5. जितने मार्क्स हमने क्वेश्चन करना उतनी हमने वो टॉपिक साथ में जोड़ देना. इससे अब क्या होगा, जिसने ये याद किया है कि फीचर्स लिखे होंगे तो ये लिख के आने हैं, वो निकल जाएगा बच्चा, वो रह गया है ना. जिसे वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा वो चलेगा, वो करेगा उसको. और उससे क्या हो, टाइमिंग जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी. तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या चीज़ है, फीचर है या कुछ और है, और फिर पूछा जाएगा कि आप जो है उसके में यहाँ पे जिस बच्चे ने लर्न किया हुआ है ना, उसको भी चांस मिल रहा है अच्छे मार्क्स लेने का. जिसने क्रैम नहीं किया है, समझा हुआ है, उसको भी पास मिल जाए. बड़े कॉमनली क्वेश्चन ऐसे आस्पेक्ट पूछ लेते हैं, उसी आस्पेक्ट का आगे जो है वो उतने पॉइंट्स और ऐड कर देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स. बिकॉज ऐसे वाले क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6 सेट करना बड़ा इजी रहता है, बहुत इजी रहता है. किसी भी मार्क्स पे सेट किया जा सकता है क्वेश्चन.
ठीक है. नेक्स्ट इज what should be the focus point for a manager while controlling as controlling at each and every step is not possible. What should be the focus point for a manager while controlling, because controlling at each and every step is not possible. We can't control everything, right? So what should be the focus point of manager for controlling? Divanshi, So key results area. key result areas. The focus point should be key result areas, or the point should be critical point control, है ना? Because each and everything can't be controlled by the manager. ठीक? Then is give the names of needs as given by Abraham Maslow. Names as given by Abraham Maslow. Only name you have to give. Explanation नहीं चाहिए. मैं 1 मार्कर की बात कर रहा हूँ, इसलिए explanation नहीं चाहिए. Only names. Kanika. Physiological needs as security needs. Physiological needs, security needs, affiliation needs, and self-actualization needs. ये 4 हुई है, 5 तो नहीं है. Self-esteem. 4 हुई है ना. Required. 5. Basic needs, physiological needs. पहली है basic needs. Biological security. कौन सी है? Safety needs. Safety. Safety needs भी हो गया. And when we say Security needs. what type of safety? Safety दो safety. Safety में याद है किसी को? याद है? दिव्यांशी याद है? Safety. Job security. हाँ जी. Safety. Job security. Job security. Okay. दूसरी. और economic safety. Physical safety. Economic, safety. physical safety and economic. हाँ जी. Physical safety and economic safety. Physical safety, economic और financial safety. Security, ये safety, है ना? Physical safety, safety from injury etc. and financial, पैसे की safety. दो safeties की हम बात करें. ओके ठीक है. Safety needs होगी. उसके बाद तीसरी Affiliation needs. affiliation needs, yes. Social needs भी कह देते हैं उसको. उसके बाद Esteem needs. Self-esteem needs. esteem needs, इसको क्या कह देते हैं? इसे क्या कह देते हैं? और सेल्फ एस्टीम नीड्स को ईगो नीड्स. Status needs. लास्ट Self-actualization needs. एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना? ये क्वेश्चन कैसे बनता है? सी, यही क्वेश्चन 5 मार्क्स से बन सकता है, यही 6 मार्क्स से बन सकता है, 3, 4 में बन सकता है. 1 में कैसे बनेगा? कोई एक नीड के बारे में पूछ लेंगे, या फिर और ट्विस्ट डालना होगा तो वो पहले आंसर बता देंगे, बोलेंगे नीड कौन सी है ना? 1 मार्क का बन जाएगा. ये क्वेश्चन भी 1 to 6 हर तरह के रेंज में आ रहा है. ठीक है. देन name that training method in which the actual environment is duplicated to give the training to the employees. Duplicated as far as possible. It is duplicated. Of the job. हाँ जी हर्षा. Of the job. मैं समझ नहीं पाया बेटा, दोबारा बोलोगे? The job training method. In every of the job training method, the actual environment is not duplicated as far as possible. It is the feature of a special type of training. Of the job training में तो एक और मेथड होता है, फिल्म्स, मूवीज दिखा देना, मूवीज दिखा के वर्कर्स को ट्रेन कर देना. But that environment is not at all duplicated. वो तो मूवी दिखा रहे हैं, वर्कर ने काम करना है मशीन पे, है ना? हम केस स्टडीज करवा सकते हैं वर्कर्स को, जैसे हम
पुलिस वाले होते हैं, उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनको केस स्टडीज बताते हैं, कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो भी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। बट द एनवायरनमेंट इज नॉट डुप्लीकेटेड ना, किसी बंदे का दोबारा खून करके तो दिखा रहे हैं, उन्होंने कोई खून करने वाला कोई केस सॉल्व किया था, उन्होंने एनवायरनमेंट डुप्लीकेट कर रहा हो, एक बंदा और पकड़े, पहले खून करें फिर भाग जाए फिर तो पकड़े उनको, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। द क्वेश्चन इज ऑफ द जॉब का ये आंसर, उसका ऑफ द जॉब का ये आंसर है कि जब जॉब पे उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। बट द क्वेश्चन इज हर्षा दैट ट्रेनिंग देते वक्त द environment is duplicated as far as possible, total environment is duplicated as far as possible. Of course it is kind of the job training method, but this only is not the of the job training method, it is the kind of the job training method. आ रहा है किसी को याद वसुंधरा? Sir, vestibule training. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या वेस्टिब्यूल स्कूल भी बोल देते हैं इसको, दिस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। हर्षा, इसमें पूरा एनवायरनमेंट जो होता है, हर्षा है ना, बात सुन रहे हो मेरी? हर्षा, पूरा इसमें एनवायरनमेंट जो होता Yes, sir. है पूरा क्रिएट कर दिया जाता है दोबारा। जिस वर्कर ने या किसी मशीन पे काम करना है तो उसको मशीन पे काम करवाया जाता है, लेकिन सेम मशीन पे काम करवाया जाता है और कहीं और करवाया जाता है ऑफ द जॉब। मीन जब वो ट्रेनिंग ले रहा है तब उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये हम एग्जांपल भी दे चुके हैं। अगर बैंकर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे पे पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उनको ऑफ द जॉब देनी ज़्यादा बेटर है ऑन द जॉब से। एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर अलग से तैयार किया जाता है फॉर द ट्रेनिंग पर्पज ओनली। ऐसे केसेस में जो बिजनेसमैन, जो मैनेजर है, ही विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे। अगर वो पैसे किसी भी यहाँ वहाँ गलत ट्रांसफर कर दे तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एक वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ना, टू गिव द ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सही आंसर इसका ये है। Then is what are semantic barriers? Semantic barrier. Sir, repeat करना question. Semantic barriers का शो SEMANTIC. Barriers related to languages. Barriers encoding and decoding language, है ना? इससे जो बैरियर्स रिलेट जो हैं होते हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स, दे आर सिमेंटिक बैरियर, जनरली कोडिंग एंड एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक, फाइन। जैसे वो हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है? Sir, with A or two. हाँ जी, क्यों एक आंसर देना है आपको? मैंने उस दिन भी एग्जांपल यही दी थी, मैंने आंसर मैंने यही लेना है आपसे। दिस इज अ सिंपल डिफरेंट मीनिंग, दिस इज द सिंपल मीनिंग। अगर आप टू बोलोगे तो मैं बोल दूंगा नहीं ये बी है, आप बोलोगे मैं बोलूंगा नहीं सी है, तो मतलब ये बैरियर ही रहेगा जब तक कि सेंडर इसे क्लियर नहीं करता, इसको सही तरीके से एनकोड नहीं करता, आप उसको सही तरीके से डिकोड नहीं करते, है ना? या तो सेंडर बता ही दे कि ये टू है, या फिर इस चीज को उसकी बात के साथ रिलेट किया जाए कि जो वो कह रहा है वहां ये टू बनता है या वहां ये बी बनता है, तो है नहीं। या तो सेंडर बताएगा, अगर नहीं बताएगा इट इज एनकोडिंग प्रॉब्लम, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो दैट इज डिकोडिंग प्रॉब्लम। So the barriers which arise due to the encoding and decoding of messages are known as semantic barriers. Then there give any one limitation of internal source of recruitment. Any one limitation of internal source of recruitment. वो ये सब कर सकती है। और आप भी तो देखिए ना, मिस्टर नाथमल ने प्रेजेंटेशन का पहला मौका ले लिया। अनिका, और तो हमारा No fresh talent is being received. हाँ जी, internal No fresh talent is being received through the internal. मैं बेटा समझ नहीं पाया, दोबारा बोल दो प्लीज।
No fresh talent is being received. Yes, no fresh talent is received because fresh talent can come from external sources only. बिल्कुल ठीक है बेटा. Name the method of training in which a trainee learns under the guidance of a master worker. In which a trainee learns under the guidance of a master worker. One else? Under the master worker. मैं ऑप्शन देता हूँ आपको. जो ट्रेनिंग आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग थी, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थी, एक थी आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इस पे से आंसर दे दीजिए मौलिक. Apprenticeship training. हाँ जी. Apprenticeship training. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर. वर्कर की हम बात हो रही है. इट मींस तो प्लम्बर, वो इलेक्ट्रिशियन, वो कारपेंटर, वो मैसन, उसके अंडर जो पर्सन वो काम कर रहे थे. Between recruitment and selection, which one is the positive process? Ashita. So repeat. Recruitment. Recruitment. The question was between recruitment and selection, which one is positive? The positive step is recruitment. Selection is a negative step. Fine. Then is many prominent companies in India visit educational institutions for recruitment and selection of suitable candidates. Mention the name of this source of recruitment. Name of this source of recruitment. Kanika. Campus recruitment. Campus recruitment, yes. And campus recruitment is a method of recruitment from which source? Internal or external? External. External. Internal. Okay. External. Then is yes. Next is name the step of organizing process through which departments and sections in an organization are created. Name the step of organizing process through which departments and sections in an organization are created. In an organization are created. Ishita. Departmentalization. Very good. Beta. It is departmentalization. Departmentalization is a step in the process of steps of organizing, in which different departments are created. Good, Ishita. Next is name the organization structure in which activities are grouped on the basis of products. In which the activities are grouped on the basis of products. Vasundhara. A divisional structure. Divisional structure. Yes. बिल्कुल ठीक है. आई होप कि बाकियों का आंसर भी यही था. अगर आपका रॉन्ग था तो पूछ लेना कि सर मैं ये सोच रही थी मेरा आंसर क्यों नहीं है. Next is
those managers tend to succeed in planning who have foresight, intelligent imagination, and sound judgment. Why is it so? I am repeating it. Those managers tend to succeed in planning who have foresight, intelligent imagination, and sound judgment. Why is it so? One child only. Two. Estudiancy. So, planning is about future events and future is uncertain. Planning is about Planning, so planning is futuristic and future is uncertain. So the managers who are able to judge the future changes in the business environment or are able to एग्जैक्ट सा नहीं बनता है बेटा, ये थोड़ा इसको और कोई और फीचर सोच के देखो। चलो है ये फीचर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, है ये फीचर। व्हाई इज इट सो? व्हाई रीजन इस चीज का पूछ रहा है वो। व्हाई इज इट सो दैट ओनली दोज मैनेजर्स टेंड टू सक्सीड हु हैव फोरसाइट, हु हैव गुड इमेजिनेशन, हु हैव मेंटल स्ट्रेंथ, only those managers they tend to succeed in this. Why is it so? ये फीचर है प्लानिंग का। हर्षिता, हर्षिता आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, इग्नोर हो गई। वसुंधरा वेट, वसुंधरा वसुंधरा वेट, वसुंधरा वेट। बिस्मन, Sir, forward-looking approach. planning is a forward looking, it is a forward looking approach, but ये केस स्टडी टाइप है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला भी पॉइंट नहीं बन रहा है बेटा। ऑफ कोर्स इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। उसमें रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों है, वही मैनेजर्स क्यों जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिन मैनेजर्स की इमेजिनेशन, Because they sir, हिंदी में बता दूं? आप पंजाबी में बता दो बेटा, कोई बात नहीं पड़ेगा। सर, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी जब उन्होंने प्लानिंग की थी पहले, तो फिर वो उन बैरियर्स को बीच में आने नहीं देते। जिन जिन आपकी बात ठीक है, लेकिन ये फीचर कौन सा है प्लानिंग का? बातें आपकी सारी ठीक है, लेकिन फीचर बताना है आपको। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन फीचर बता दो एक। हाँ जी वसुंधरा। Sir, because planning is a mental exercise. यस, बिकॉज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमने किया है फीचर, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो इसकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा है, इसकी फोरसाइट ज्यादा है, इसका विजन अच्छा है। ओनली दोज मैनेजर्स कैन गेट सक्सेस इन द प्लानिंग। इट इज सो बिकॉज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आप ना दुश्मन, आपका आंसर जो था वो आसपास कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन ऐसी बातें ना फिर लिखनी और वहां पे समझनी एग्जाम बड़ी डिफिकल्ट सी हो जाती है। अगर वो टेक्निकल टर्म एक ली जाए ना, या वो फीचर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो लिखना इजी होता है, एक कम लिखना पड़ता है। ओके सर। हाँ जी दिव्यांश। मैंने पूछना था कि इस क्वेश्चन में फ्यूचरिस्टिक क्यों नहीं आ सकता? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक नहीं आ सकता, फ्यूचरिस्टिक की वो बात नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली बात कर रहा है मैनेजर के व्यू पॉइंट। वो फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में ही तो पॉजिटिव भी आने हैं, फ्यूचर में भी नेगेटिव भी आने हैं। वो यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर के पॉजिटिव्स की बात कर रहा है। इसलिए उसने कहा ऐसा क्यों होता है कि मैनेजर जो है वो यही सक्सीड होते हैं, और इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें, दूसरे वाले सक्सीड नहीं होते हैं, तो उनका विजन, उनकी इमेजिनेशन वो नहीं होती है। ये मेंटल एक्सरसाइज है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम होती है, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर उसमें ये ना लिखा होता ना कि वो सिर्फ वो वाले जो है वो मैनेजर्स सक्सीड होते हैं जिनकी ज्यादा इमेजिनेशन पावर अच्छी है, अगर लिखा होता कि मैनेजर जो है वो इवेंट्स को देख लेता है पहले ही, फिर वो हम कहते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है ना। इसमें फ्यूचर वाले पॉइंट को वो पॉजिटिव साइड पे ले गया है कि व्हाई इज इट सो कि ओनली दोज मैनेजर्स गेट सक्सेस, इसलिए ये मेंटल से ज्यादा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ओके। देन है
in a country, people use cellular phones, e-commerce, and internet quite frequently. Which component of business environment is highlighted by this statement? Technological. Technological. It is technological environment. इंटरनेट की बात हो रही है, सेलुलर फोन्स की बात हो रही है, ई कॉमर्स की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है. Then is name the elements of directing. ठीक है सबको आने चाहिए. तो अभी भी हमने की है 10-15 दिन पहले की बात. सिर्फ हमें नेम देना है यहाँ पे. हर्षा. Supervision, motivation, leadership, communication. बिल्कुल ठीक है बेटा. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. बिल्कुल सही है बच्चे. That is what is communication? Gurleen. Communication refers that presenting one's view to the other person in that way that the idea we have in our mind should be transferred to the other person in the same way we are thinking. बात बिल्कुल ठीक है बेटा. बिल्कुल सही बात है आपकी कम्युनिकेशन के बारे में बोली. लेकिन ना आपको आता है, आपके पास वोकैबुलरी नहीं. बट आई एम फीलिंग बुक से नहीं लिया वो, मतलब आई एम नॉट सेइंग बुक से ही लेके आना है, ऐसा अपना भी डालना है आपको, नो डाउट. जब हमें ना सोच सोच के बोलना पड़े ना, और जब हमें हमारे पास वो वोकैबुलरी कम हो और उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि आपके वाला आंसर ऐसा था. आंसर बिल्कुल ठीक था, बट दिस आंसर कुड हैव बीन गिवन इन शॉर्टर लेंथ आल्सो, बिकॉज हम 1 मार्क कर रहे हैं तो ये 1 सेंटेंस में आंसर आना चाहिए, है ना. या 2 पे लगा लेते हैं आप. मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आंसर आपका लंबा होना की टाइम थोड़ी है, बट पॉइंट इज यहाँ आंसर लंबा करो, कहीं कहीं वो छोड़ के आओ, है ना. जब आप देखना, आप बोलिंग जब आप बुक से पढ़ोगे ना, यही आंसर आपके थोड़ा पॉलिश हो जाएगा. यही वाला आंसर मतलब वहां भी यही बनता होगा, लेकिन आंसर आपका पॉलिश हो जाएगा, टर्म्स अच्छी हो जाएंगी, वोकैबुलरी और आ जाएगी, है ना. आंसर आपको पता है, मतलब अगर पढ़ाना हो ना आपने तो बड़ा अच्छा आंसर था ये वाला. लेकिन अगर पेपर देना हो तो थोड़ा सा मतलब ये वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, है ना. पढ़ाने के लिए दूसरे के लेवल तक जाना वो ठीक है, लेकिन जब आपने आंसर देना है ना, पेपर में देना है, आपके पास थोड़ी सी मतलब ना पॉलिश आंसर होना चाहिए, क्वालिटी आंसर होना चाहिए. आंसर गलत बिल्कुल नहीं था, आंसर तो बिल्कुल ठीक. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और पॉलिश ही कर दूँ, मैं ये कह सकता हूँ. ठीक है बच्चे. Okay, sir. नेक्स्ट इज at what level of management directing takes place? Which level of management directing takes place? Wait, Jackie, wait. You are very eager to give me the answer, I know. है ना. आंसर आपको पता है, लेकिन आपको डाउट है, पता नहीं वो सही है कि नहीं सही. आपके एक्सप्रेशन बता रहे थे फेस पे जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आपका जो आंसर आ रहा था, आंसर आप देना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज भी हो, वो सही है आंसर कि नहीं सही, बिकॉज क्वेश्चन ने ही थोड़ा ट्विस्ट कर दिया. और कौन, और कोई? 1 2 3 4. इशिता. टॉप लेवल. दिव्यांशी. Sir, at all levels of management. At all levels of management, yes. Question में twist डाला हुआ है ना, at which level of management? Actually, directing takes place at all levels of management. At all levels. Directing क्या होती है? Instructions देना.
Top level management directs the middle level management. Middle level management directs the lower level management. Lower level management directs the workers. So it takes place at all levels of management. ठीक है, इशिता ठीक है आंसर? Yes, sir. ठीक है. Then is what is the difference between formal and informal communication? सर रिपीट कर दो. Difference between formal and informal communication. No one? Formal and informal communication. Correct? It means you were informal that time when I was teaching this topic. Correct? Navjot. So formal communication is that communication which is done within the organization and it is officially sanctioned. And the informal communication is a type is an organization which within an organization that is not officially sanctioned. It may be out of the organization also. Navjot? Yes. Okay, we should not use this, but within the organization. It may be out of the, especially the informal organization. Communication. Especially that. It may be out of the organization also. Means that when a communication follows a proper chain of authority, है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, orders की form में हो, request की form में हो, guidelines की form में हो, that is formal communication, जो कि formal channel से जा रही है. Formal channel means those channels which have been set by the management. CEO department head communicate कर रहा है, वो आगे मैनेजर को कर रहा है, मैनेजर को कर रहा है, वर्कर्स को कर रहा है, या वर्कर्स कर रहे हैं ऊपर मैनेजर्स डिपार्टमेंट. दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मींस जो चाहे कोई पोजीशन हो वर्कर की या मैनेजर कोई पोजीशन हो, जब वो इनफॉर्मली, है ना, जब इनफॉर्मली वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. जैसे हम कई बार ये बात करते होते हैं, मैनेजर और सुपरवाइजर जब वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर कोई ऑर्डर निकाल रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है. सुपरवाइजर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है. लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों इकट्ठे बैठते कहीं बैठ के चाय वगैरह पानी वगैरह पी रहे हैं, तो जब वो बात कर रहे हैं दैट इज इनफॉर्मल, दैट इज नॉट फॉर्मल कम्युनिकेशन. बिकॉज two persons if they are not at same level, they can be friends also, they can be relatives also. तो जब वो बात कर रहे हैं इनफॉर्मली आउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब बात कर रहे हैं दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है. और कोई चीज बेटा आपने पूछनी है पूछ लीजिए प्लीज. एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड द बीडी मीट टुमारो. हाँ जी रिवेंशन. सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था, ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स बट ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो. यस, ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स. है ना, जितने मैनेजर्स हैं दे ऑलवेज लीड आल्सो, दे मैनेज आल्सो एंड दे लीड आल्सो, है ना. बट ऑल द लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स. वो लीडर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मैनेजर्स भी हो, वो मैनेज भी कुछ कर रही हो. एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं लीडर्स ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स की यूनियन बनती है फैक्ट्रीज में, बिजनेस में, उसका जो लीडर होगा वो मैनेजर नहीं होगा. लेकिन अगर बिजनेस में कोई मैनेजर है तो मैनेज तो कर ही रहा है, वो साथ में अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को लीड भी कर रहा है. सो ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट नॉट नेसेसरी दैट ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स. ठीक है हर्षा? सर एक बार ट्रेनिंग के मेथड्स बता दो. ट्रेनिंग के मेथड्स में ऑन द जॉब मेथड्स थे बेटा, एक ऑफ द जॉब थे, है ना. सर वो जो 3 मेथड्स आपने बीच से लिखे हैं वो. हाँ जी. ऑन द जॉब वाले में ये 2 आ रहे हैं, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप होता है जबकि वर्कर अपने सीनियर वर्कर के अंडर काम करते हैं, प्लम्बर वगैरह हो गए, कारपेंटर वगैरह हो गया, मैसन वगैरह हो गए. इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जब स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है, डॉक्टर्स, लॉयर्स,
सीए, ये अपने किसी सीनियर के अंडर काम करते हैं, उनसे सीखते हैं, है ना। और ये चीजें जो होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह उनके द्वारा अरेंज की जाती है। एक है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये हमने अभी किया। ठीक है हर्षा? यस सर।